তো দর্শক, একটা খুব সুন্দর দৃশ্য দেখাবো আজকে আপনাদের। আগরতলার রাজবাড়ি উজ্জন্ত প্যালেসের সন্ধ্যার দৃশ্য দেখছেন, যেখানে দ্য বিউটিফুল লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ব্যবস্থা করা আছে। সে দৃশ্যটা দেখাবো আজকে আপনাদের, যে উজ্জন্ত প্যালেসের লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শো এবং যে ভিউটা হয়, সেই ভিউটা নিয়ে আজকে একটা খুব ছোট্ট আকারে ভিডিও বানাবো আপনাদের। ত্রিপুরার দ্য মোস্ট বিউটিফুল সাইট, টুরিস্ট স্পট এবং ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম হিসেবেও পরিচিত। আমি একটু জুম করে এখনকার লাইটটা দেখাই দূর থেকে। বিউটিফুল, রিয়েলি বিউটিফুল। একদম কাছে নিয়ে যাবো আপনাদের। পাশে জলের ফোয়ারাগুলো দেখতে পাচ্ছেন। চলুন সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে এই উজ্জন্ত প্যালেসের ইতিহাসের দিকে একটু আলোকপাত করি। উজ্জন্ত প্যালেসটি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য মহাশয়। 1901 খ্রিস্টাব্দে উজ্জন্ত প্যালেস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উজ্জন্ত প্যালেসের আর্কিটেক্ট ছিলেন স্যার আলেকজান্ডার মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি। উজ্জন্ত প্যালেসের নামকরণ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের একটি পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে বহুবার রবি ঠাকুর ত্রিপুরা ভ্রমণে এসেছিলেন। 1973 সাল থেকে 2011 সাল পর্যন্ত এই উজ্জন্ত প্যালেসে ত্রিপুরার বিধানসভা ভবন ছিল। এরপর বর্তমানে ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উজ্জন্ত প্যালেসকে। প্রিয় দর্শক, আমিও আজ সন্ধ্যায় উজ্জন্ত প্যালেসে প্রবেশ করেছি। 100 টাকা দিয়ে টিকিট করে আমার মতো আরও অনেকেই পর্যটক এখানে এসছেন এবং এই সন্ধ্যাকালীন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড মিউজিক প্রদর্শনী দেখার জন্য এখানে এসেছেন। তো আমি প্রায় পাশাপাশি এসে গেছি সামনে। পুরো দৃশ্যটাই আপনাদের দেখাবো, সবাই সঙ্গে থাকুন। তো উজ্জন্ত প্যালেসের সে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দৃশ্য আমার জন্য ফার্স্ট টাইম। দিনের বেলা অনেকবার এসেছি, কিন্তু সন্ধ্যায় প্রথম আসলাম আজকে। ভাবলাম যে আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট আকারে ভিডিও বানিয়ে নিই। সেই দৃশ্যটা সামনেই সেটা রয়েছে। অনেক পর্যটকরা এসছেন এখন এই দৃশ্য দেখার জন্য। সে রাজমহলের, ত্রিপুরার একটি ঐতিহ্যবাহী জায়গা। এই প্রদর্শনীতে লাইটের মাধ্যমে ত্রিপুরার ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, যেখানে ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের কাহিনী এবং বহিরাগত শত্রুর দ্বারা ত্রিপুরার উপর আক্রমণ, তা কিভাবে প্রতিহত করেছেন ত্রিপুরার রাজারা, সবকিছু কিন্তু লাইটের মাধ্যমে শো করা হয়। धर्म का पार्थिव स्वरूप लुप्त होते ही अधर्म का तमस बढ़ने लगा। जो बात पहले दबी जबान में कही जा रही थी, वो अब सड़कों पर गुर्राते नारों में सुनाई दी। राज्य का अस्तित्व दांव पर लगा था और भय था हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा और संस्कृति के विलुप्त हो जाने का। परंतु ऐसी चुनौतियां त्रिपुरा के लिए नई कहां थी। काल की परिक्रमा के लिए निकलता हूँ तो 13वीं सदी पर आकर रुक जाता हूँ। ये वो समय था जब तलवार लहराते बर्बर आतताई राज्य की सीमा लांघने लगे थे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में त्रिपुरा का राजकाज महाराजा चेंगथोंगफा ने संभाला। एक दिन शिकार खेलते हुए महाराज ने जंगली बराह को अपने तीर का निशाना बनाया, परंतु उसी समय उस वराह को राजकुमारी नाइथोक्ति का तीर भी आ लगा। संयोग से इन दोनों का मिलना हुआ, जिसका परिणाम विवाह था। किंतु ये बात कोई नहीं जानता था कि इस संयोग का बड़ा प्रभाव त्रिपुरा के भविष्य पर पड़ने वाला था। बंगाल और त्रिपुरा की सीमा पर मेघना नदी बहा करती थी। बंगाल की ओर से लूटपाट करने इरावत खान अक्सर त्रिपुरा में घुसपैठ करने लगा। महाराज चेंगथोंगफा ने लुटेरे को खदेड़ भगाया, परंतु इरावत खान फिर लौटा और इस बार उसके साथ
गौर की विशाल तुर्की सेना भी थी। महाराज असमंजस में पड़ गए। महाराज, आप यहाँ एकांत में? बाहर सभी सेनाध्यक्ष आपकी राह देख रहे हैं। सेना अध्यक्षों से मिलकर कहूंगा क्या महारानी? हिरावत खान की सेना से टक्कर लेना आत्मघात है। समर्पण से तो मृत्यु उत्तम है। आप समझ नहीं रही है महारानी। सुबह से मेरी आंख फड़क रही है। ये शुभ संकेत नहीं है। धर्मावतार, जब शत्रु द्वार तक आ पहुंचे तो वीर पुरुष की भुजाएं फड़कती हैं। यदि आपको अनिश्चय ने स्तब्ध कर दिया है तो हिरावंत खान का मुकाबला मैं करूंगी। और महारानी ने ऐसा ही किया। विकराल गज पर सवार महारानी नैथोक्ति क्रुद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी का रूप लग रही थी। उनका हाथी ऐसे गरजता था मानो इंद्र के ऐरावत को चुनौती दे रहा हो। महारानी की चीत्कार ने त्रिपुरा की सेना को और अधिक प्रोत्साहित किया और अपने पराक्रम से त्रिपुरा के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा की। 1240 में हुए इस युद्ध में त्रिपुरा की जीत हुई और महारानी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुई। परंतु यह समर आने वाले विकट समय की चेतावनी बनकर आया था। 15वीं सदी के अंत में महाराज धन्य माणिक्य का उदय हुआ, जो उतना ही नाटकीय था जितना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्य प्राप्त करना। षड्यंत्रकारी सभासदों और सेनापतियों का वध कर उन्होंने अपना अधिकार पाया। महाराज धन्य माणिक्य का सामना बार बार बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह से हुआ। अपनी सामरिक सूझबूझ और छापामार युद्ध पद्धति के चलते वे हमेशा हुसैन शाह पर भारी पड़े और उन्होंने बंगाल का भी अपने अधीन कर लिया। एक ने इनके सैनिक हुसैन शाह की एक तोप को ही उठाकर अपने साथ त्रिपुरा ले आए। महाराज धन्य माणिक्य ने कई युद्ध अभियान चलाए। एक ओर कुकियों के किले पर अद्भुत तरीके से चढ़ाई कर उन्हें हराया और बर्मा तक अपने राज्य को फैला दिया, तो दूसरी तरफ आरकान को जीतने के लिए सतत प्रयास किया। महाराज के विश्वास पात्र सेनापति राय कजार और उनके छोटे भाई राय कौसुम उनके अभेद कवच और प्रमुख शस्त्र थे। दोनों ही प्रखर वीरों ने कई युद्धों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। पराक्रम के साथ साथ महाराज धन्य माणिक्य में रचनात्मक ऊर्जा भी कूट कूट कर भरी थी। उनके राज में सीमाओं के विस्तार के साथ साथ कला का भी प्रसार हुआ। उनके द्वारा बनवाए गए चतुर्दश देवता मंदिर, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और भैरव मंदिर इस बात को सिद्ध करते हैं। महाराज धन्य माणिक्य ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने बाद आने वाले राजपुरुषों को सदा ही प्रेरित किया। 17वीं सदी में राजपद